वेलकम एवरीबॉडी। सर का नाम है राजेश मल्होत्रा जी। ये मैन्युफैक्चरर हैं और ये जो फर्नीचर यूज होते हैं होटल इंडस्ट्री में उसके मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी का नाम मेट्रो लाइफ, राइट? Metro Plus Lifestyle. मेट्रो प्लस लाइफस्टाइल, आई एम सो सॉरी। मेट्रो प्लस लाइफस्टाइल। सो आई वांट टू वेलकम राजेश सर। Yeah, yeah, sure. Thank you, Abhinav. I'm Rajesh Malhotra, and my company's name is Metro Plus Lifestyle. So we are basically into hotel, restaurant, banquet, cafeteria, and outdoor furniture. So we are specialized in customization of theme-based restaurant furniture, basically. So I'm into this field since last 20 years, and most of the hotels in India are our clients. मैं जेन्युइनली समझना चाह रहा था कि आपके जैसा बिजनेस ओनर जो फैक्ट्री का ओनर भी है, तो आपका काफी कुछ रिटेल पे डिपेंड करता है बिजनेस। आप कैसे हैंडल कर रहे हैं लॉकडाउन सिचुएशन? क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से बात कर रहा था और कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे पता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी ऐसा फील करते हैं। नहीं अभिनव, never negative. I take everything in a positive manner because every adversity has a seed of an opportunity like somewhere. So how I am preparing myself for after lockdown era, because after this it will be this era will be categorized into two parts: before COVID-19 and after COVID-19. That's for certain. जैसे पहले हुआ Lots and lots things are going to change. Yeah, बहुत सारी चीजें ना चेंज होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें. लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी सेम अगेन. If you can see, we have started living our life in simplicity, and we have already simplified our lives. If we are not going anywhere, we have just lost the distinction of days and time. लेकिन मेरी नजर में एक ये बहुत बड़ा और बढ़िया और एक महत्वपूर्ण फेस है, जिसको मैं ये मान के चलता हूँ, ये लाइफ चेंजिंग फेस है. राजेश जी, आपने बहुत सारी चीजों पे बात की जिसकी जरूरत है सोचने की, सही करने की। सो एक एक करके बात करते हैं। पहली चीज किस पे हमें जरूरत है कि हम क्या सही करें अपना? जी। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है. द फर्स्ट थिंग यू शुड डू अर्ली इन द मॉर्निंग इज टू मेक ए डेली स्केड्यूल. आपको सुबह से लेकर, अगर हम कुछ पर्टिकुलर चीजों को मेजर नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट डू इट. सो and how we do anything is how we do everything. We usually say this: you people can have a very basic funda that's called savers. I've discussed with you earlier also. बहुत अच्छी technique है. It starts from SAVERS. So if you just have to do something first thing in the morning, so you start with meditation and gratitude, then affirmation, the way you want your life to be in after lockdown, and you affirm it. You affirm it and you make note on how you want your life to be. Then start working for it. Then comes V. V stands for visualization. When you get up in the morning, there are different type of mood swings of the people. Some people get up in the good mood, some people get up in the bad mood due to reason whatsoever it may be. उसके अंदर ना एक अपने सबसे बेहतरीन दिन जिस तरह से आप गुजारने वाले हैं, उसको 2 से 5 मिनट की विजुअलाइजेशन कीजिए. यू जस्ट सी इट हैपनिंग. यू जस्ट क्लोज योर आईज फॉर कपल ऑफ मिनट्स. 2 3 4 मिनट आप आंखें बंद करके आप सोचो कि अगर मेरी जिंदगी का आज सबसे बेहतर दिन है तो वो किस तरह मैं उसको गुजारना चाहूंगा. तो दिस enforces a rhythm basically to do the things which you want to do as you want to do. Okay. उसके बाद आता है exercise. That people who don't want to go out, or maybe they don't have the scope of some lawn area, or maybe so you can start with doing some stretching, some pranayam in their balconies, or maybe you just have to make yourself sweat for maybe 20 minutes, 30 minutes, so that your mind is just open now to do the things. Then comes R. R means reading. You should read books on your personal development and on your business development, so that those things can bring you closer to your goal. आपको लक्ष्य निर्धारित करने में बड़ी आसानी हो और आपको नजदीक लेके आ सके वो. उसके बाद आता है S. S stands for scribing. Scribing मतलब journaling.
whatever things which you have learned, you make a journal of the golden nuggets of the point that you can utilize, or you can learnings that you can schedule in your daily life. So ये पूरा सेवर्स है जो मैं डेली करता हूँ. I don't miss a day. आपने बताया कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उसके लिए स्क्रिप्ट आपने तैयार करवाई अपनी टीम से और वॉइस ओवर आप करवा रहे हैं, क्या है ये थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो इट वाज सजेस्टेड बाय माय डिजिटल कंसल्टेंट हु इज ऑन माय रिटेनरशिप. सिंस आई हैव टू पे हिम, so he has to pay his people, so I thought let's why not make a better utilization of when we have most of the time. Because क्या होता है कि जब आपका टाइम बहुत आपके पास हो तो बड़ी सारी चीजों का कंसोलिडेशन फेस आता है. अभी हम काम में फायर फाइटिंग में इतना बिजी रहते हैं कि हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं. तो सपोज अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे एक आप कहें स्विंग है, गार्डन स्विंग है, तो हम उसकी स्लाइड शो चलाते हैं और उसके बाद हम एक स्क्रिप्ट तैयार करके स्टाफ को देते हैं कि हाउ टू एंगेज ए कस्टमर बाय टेलिंग द स्पेसिफिकेशन, द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर मॉडल दैट शी इज डिस्कसिंग. और वो सारी चीजें हम जब किसी को किसी पर्टिकुलर मॉडल के बारे में जानना होगा, तो instead of calling a customer, she can send a link of all type of swings with her or his voiceover so that they can identify whatever they are looking for. Similarly, we have made approximately 1,000 videos, and till 3rd of May, like I'm pretty sure about, we are going to make another 1,000. So that will be, and one more thing we are doing, we are consolidating the project images. That's again, guys, very important aspect. What happens when somebody calls you from say Indore, and he says I'm like calling you, but the thing is I want to know what all you have done. So instead of telling what all we have done, the projects in Indore, we send him a link on his WhatsApp, and the link consists of all the major products that keep on updating also, that we have done in Indore, with the name and the phone numbers if they want, so that they can see about what all we have done over there, what all type of things we can customize for our people. And then to keep them engaging, we ask them to call anyone and confirm about our credibility. So this is one way of engaging our customer and doing the automated tasks, because these tasks are repeated, so it should be automated. So this is what I emphasize on. ऑडियंस में कहना चाहूंगा कि देखो यार, जो लोग करना चाहते हैं वो भी तरीका ढूंढ ही लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वो बहाना ढूंढ लेते हैं. सो इट्स योर चॉइस कंप्लीटली. और आप देख सकते हो एक एग्जांपल आपके सामने है. सर की काफी काफी सीनियर है, और उसके बाद भी लाइक कोई रेस्टलेसनेस नहीं है, सीखने के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखता है मुझे. हमेशा ही अप फ्रंट इन लर्निंग. आज भी तमाम कोर्सेज करते हैं हम लोग, इनफैक्ट एक कोर्स में ही मिलते साथ में. सो अमेजिंग अमेजिंग. जब भी सर से बात होती है तो काफी कुछ सीखने को मिलता है. सो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर आज राजेश मल्होत्रा जी जीरो पे होते और फ्रेश स्टार्ट करना चाहते तो क्या करते? बेसिकली एवरीथिंग वाज एंटिसिपेटेड. इस पे ये नहीं कि मैं जीरो पे आ जाता, बट स्टिल इफ यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अगर मैं बिल्कुल जीरो पे होता तो आई कुड हैव thought about the opportunities there that are coming right now. जैसे अभी आज की डेट में we have so many like groups also, but we are not doing our business, furniture business right now. तो opportunities आ रही हैं मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट्स की, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स की, पीपीई किट्स की. तो आई ऑलरेडी प्लेस सम ऑर्डर्स इन मतलब चाइना आल्सो फॉर दोस थिंग्स. अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो बट आई हैव कॉन्टैक्ट्स, तो मुझे अपना उन कॉन्टैक्ट से आई एम गेटिंग थिंग्स डिलीवर्ड एट माय प्रेमिसेस राइट नाउ आल्सो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी राइट नाउ. वो तो सारा बेसिकली काम सारा आपका है. लेकिन मुझे इस वक्त अगर मैं जीरो स्टार्ट करना होता तो मैं सबसे पहले अब प्रोक्रास्टिनेशन को मैं खत्म करता विद एक्शन. और मुझे ये पता होता कि कहाँ कहाँ मेरे सोर्सेज हैं जो कि मैं अपने आइडिएशन से गेन करता, उनसे मैं आइडियाज जनरेट करता, और देन आई विल पुट सम ऑफ द टास्क टू द एक्शन, जिसके अंदर मोस्ट मेरी एक्सपर्टीज सेल्स है, तो मैं अपना सेल्स के अंदर ही ट्रेडिंग स्टार्ट करता. अगर मेरे पास जीरो भी नहीं होता तो पहली बात तो मैं बुक रीडिंग कभी नहीं छोड़ता. मैंने एक चीज बड़ी अच्छी सीखी है कि अगर आपके पास एक पैसा भी नहीं है ना, जीरो है ना आपके पास, तो आपको एक्सरसाइज और बुक रीडिंग, ये दो चीजें हैं ये जिंदगी में कभी नहीं छोड़नी चाहिए. ये आपको
कुछ ना कुछ डेली गोल्डन नगेट्स दे के जाएंगी ही जाएंगी। और अगर मैं जीरो पे भी हूं तो बट मेरी जो नॉलेज है ना, उससे मैं दोबारा आई कैन बिकम ए बिलियनर, है ना। जब जिसके पास कुछ भी नहीं होता तो उसके पास ग्रोथ का सबसे ज्यादा चांस होता है। अगेन सॉरी, मैंने लास्ट बोला था, बट एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, मेरे लिए पर्सनल है, आंसर देने के लिए पर्सनल नहीं है, मेरे लिए पर्सनल है। मेरा सवाल आपसे ये है, उन लोगों के लिए, मैं अपने फैमिली मेंबर्स की भी इसमें इसमें काउंटिंग कर रहा हूँ, बट कई बार अक्सर उम्र के साथ ना वो जड़ता आ जाती है। आप कुछ, और इसको मैं चाहूंगा आप प्योरली हिंदी में जवाब दें ताकि मेरे फैमिली मेंबर्स तक भी पहुंचे। अक्सर उम्र के साथ जड़ता आ जाती है, हम कुछ नया नहीं सीखना चाहते, हम एक बिजनेस में हैं तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, या फिर कुछ नया कैसे कर लें, हमने जीवन भर यही किया है, अब इस उम्र में जाके करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है लर्निंग को लेकर, कि मैं कुछ नया नहीं सीखता, तू क्या सिखाएगा मुझे, समथिंग लाइक दैट। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक एज के बाद आके लोग टाइप कास्ट हो जाते हैं, यानी कि जड़ जाते हैं, यू कैन नॉट चेंज। बट हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करना है, कभी भी किसी हैबिट को चेंज करने की कोशिश नहीं करना है। हमेशा उसके सामने एक उससे बेटर हैबिट का पैटर्न क्रिएट करना है। हम जब एक, क्योंकि मैंने अभी कैसे बताया, लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, लोग कोई मेहनत करके बहुत देर तक रिजल्ट की वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कंपाउंड इफेक्ट है ना, चक्रवर्ती इफेक्ट जिसको कहते हैं। हम जब एक काम करते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा यार, हम चलो छोड़ देते हैं। यस। तो लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कंपाउंड इफेक्ट इनिशियली इज इनविजिबल, वो अंदर खाते कंपाउंड इफेक्ट जो काम कर रहा होता है अबाउट मेकिंग ऑफ गुड हैबिट्स एवरी सिंगल डे। रोजमर्रा के हिसाब से हम जो एक चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर पहली बार तो आप कह रहे हो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए सिर्फ ये है कि उनको एक्सेप्ट तब करेंगे वो जब उनको एक चेंज फेवरेबल नजर आएगा, बदलाव फेवरेबल नजर आएगा। अब उनको बदलाव फेवरेबल नजर आने के लिए आपको दो चीजों को कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। आज की डेट में हम कुछ नहीं कर रहे या बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हमारी ये स्थिति है, तो ये स्थिति ऐसे ही रहेगी चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर हम लोग बदलाव को, कुछ अच्छे बदलावों को एक्सेप्ट करते हैं, तो हो सकता है ये 25% हमारी स्थिति को सुधारे या 20% या 10%, लेकिन जीरो से तो बेटर ही आप निकलोगे, ये पक्की बात है। हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये तो पक्का है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम कुछ स्टेप उठाते हैं, प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, तो चाहे 10% बेटर हो या 15% बेटर हो, हम कहते हैं कि रोज अपने आप को 1-1% भी बेटर करते रहो। कि जो एक दृढ़ता है ना, दृढ़ता एकदम खत्म मत कीजिए आप उनकी, उनको सिर्फ एक चीज, एक नेग्लिजिबल स्मॉल स्टूपिड स्टेप उनका खत्म कराइए, कि सिर्फ एक ही छोटी चीज, बाकी करते रहो, ये छोटी चीज ना करो। एक किताब के 10 पन्ने पढ़ लो या एक पन्ने पढ़ लो, जिसके लिए उनको बिल्कुल इतराज ना हो। साल के बाद अगर वो 1-1% भी चेंज होते गए तो वो 36.5% बेटर बन के निकलेंगे पिछली बार से। तो हम कभी भी इम्पोज ना करें और इन्फ्लुएंस ना करने की कोशिश करें, हम उनको ना एजुकेट भी ना करने की कोशिश करें, हम उनको एंगेज करने की कोशिश करें, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करें। क्योंकि हम तो अपनी चीजें इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम उनको फेवरेबल बता के, उनको बड़ा बताकर और उनसे अपने बारे में सलाह लें। कभी भी क्या होता है कि पीपल डोंट डिस्ट्रॉय व्हाट दे क्रिएट, लोग उस चीज को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करते जिसको वो खुद बनाते हैं। तो ऐसे उनसे पूछिए कि सर अगर हमें इन चीजों को थोड़ा सा बेहतर और करना है, जो कि ये काम करने से बेहतर अपने आप होगा ही होगा, तो क्या आप उसको थोड़ा सा 5-7-10 मिनट समय देना पसंद करेंगे? इसका पर्पस क्या है? हमें उनके धीरे 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 हैबिट क्रिएट करनी है। इमीडिएटली तो एक का अगर 2 पन्ने पढ़ भी लिए और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझिए 2 महीने तक या 30 दिन तक भी वो चीज रेगुलर करते गए, स्मॉल स्टूपिड स्टेप से चेंज करते गए, तो ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाएगा उनकी लाइफ के अंदर और वो हैबिट को अडेप्ट कर लेंगे। जब अडेप्ट कर लेंगे तो वो काम इजी लगने लग जाएगा, जब इजी लगने लग जाएगा तो वो काम बंदा बार बार करता है, जब बार बार करता है तो वो अच्छा लगने लग जाता है, जब अच्छा लगने लग जाता है तो वो उसकी हैबिट बन जाती है। और यही तो हम बनाना चाहते हैं, एक जड़ता से छोड़कर नई हैबिट को एक्सेप्ट करना और उसको फॉलो करना और उसके ऊपर काम करना, बट स्लोली, यू शुड गिव टाइम। ठीक है सर, बहुत सारे गोल्डन नगेट्स मिल गए। अच्छा सर, ये कंसिस्टेंसी के लिए कुछ एक आध टिप मेरी पर्सनल खुद के लिए भी मांग रहा हूँ। कंसिस्टेंसी लाइक करते हैं लेकिन लगातार करने में बहुत दिक्कत आती है, एक बार करने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे लगातार। बड़ा मैंने आपको बताया ना, सबसे जरूरी चीज है सुबह सुबह उस चीज को शेड्यूल करो। क्योंकि हमारी जो मानव की कौम है ना, हम जो मानव, हम बड़े कामचोर लोग हैं। कामचोर लोग क्यों हैं? हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम लोग कोई चीज लिखते नहीं है। क्यों हाँ, चीज लिखते नहीं है? वो करना पड़ जाएगा।
हम कहते हैं कि यार आज मैं 4 काम कर लूंगा। अरे पहली बात तो लिखते नहीं है, लिख भी ले तो पता नहीं टाइम बाउंड कमिटमेंट के साथ करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हम शेड्यूल करें, 10 से 10:30 बजे मैं ये काम करूंगा, 12 से 2 में ये काम करूंगा। फिर उसके आगे लिख ले कि या तो मैं करूंगा, या अपने कोलीग से कराऊंगा, या मैं गूगल से हेल्प लूंगा। वो भी एक्शन पॉइंट आप लिखिए, क्योंकि अगर समझो उस दिन नहीं कर पाए किसी वजह से, तो अगले दिन जब पन्ना खोलेंगे, नया शेड्यूल बनाएंगे, तो पिछले जो काम रह गए हैं उनको आपको आगे लेके आना ही पड़ेगा ना आपको। हंड्रेड। लेकिन आपने अगर एक दिन काम भूल गए और वो नहीं किया, और शेड्यूल भी नहीं किया और मेजर भी नहीं किया, तो वो कभी भी नहीं होगा काम। हो सकता है 2 महीने के बाद याद आए तो आपको थोड़ा अपने ऊपर भी शर्मिंदगी होगी। तो इसलिए स्केड्यूलिंग बहुत जरूरी चीज है। चाहे वो ना हो 100 में से एक काम हो, लेकिन लिखना जरूर है, लिखना बहुत जरूरी है। जब लिखने की हैबिट बन जाएगी ना, तो सारे काम अपने होने लग जाएंगे। जी, राइट शेड्यूल मेजर, राइट। Awesome. Thank you so much, sir. Thank you for being here. थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।